एक दिन एक ऐड देखा, ये 50 सेंटेंस रट लो और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलो। एक बार तो वो जबरदस्त यूरेका वाली फीलिंग आई, लगा कि जीवन सफल हो गया। मगर अचानक अंदर से एक आवाज आई, बेटा मान भी ले तूने अगर ये 50 सेंटेंस रट भी लिए तो क्या उनसे सब कुछ हो जाएगा। ये सुनते ही मन बहुत खराब हो गया। खुद को संभालने की कोशिश कर ही रहा था कि अंदर की आवाज फिर बोली, I don't know the truth behind such ads, but one thing I know for sure is cramming and learning are opposite to each other. Cramming एक लिमिट तक हो सकती है, but language is limitless. Remember, shortcuts never lead you to success. To succeed, you always need efforts in the right direction with a determination to learn. Hello, hi, and welcome to English English, the language learning room of Success Cafe. यहाँ आपको मिलेगा बहुत सारा सपोर्ट, ढेर सारा अपनापन, थोड़ा सा मोटिवेशन और थोड़ी सी इंग्लिश जिसे आप खुद कई गुना बढ़ाएंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक रिक्वेस्ट, अगर आप पहली बार इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो पहले आपको पिछले एपिसोड देखने चाहिए और उसमें बताई हुई बातों को फॉलो करते हुए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। और हाँ, एक नोटबुक और एक पेन अपने पास रख लें, इसकी जरूरत पड़ने वाली है। So let us quickly recap the things we learned in the last episode. We talked about building relationship with English and discussed two strategies for that. Number one, strategy of self-talk and importance of thinking in English. Two, importance of listening and its impact on our thinking. I hope you have started working on these 2 points. If not, please start. So आज के वीडियो में बहुत सारी छोटी छोटी मगर बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं. So you need to watch this episode carefully till the end. आप में से कई लोगों ने ड्राइविंग सीखी होगी. When you start learning, you are slow and careful. But as you keep learning, you develop a gradual command over the vehicle. और धीरे धीरे एक तो आपकी स्पीड अपने आप बढ़ती है और दूसरे आपकी ड्राइविंग में भी सफाई आती जाती है और फिर आप एफर्टलेसली ड्राइव करने लगते हैं. लैंग्वेज सीखना भी बिल्कुल ऐसे ही है. And it will open the gateway of limitless opportunities for you. But it takes dedicated time and constant efforts to make an expert. जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, you will feel a change in yourself. Remember these 3 golden P's: passion, patience, and perseverance. And every morning before you get down from your bed, tell this beautiful magical line to yourself. I have to excel in English and I will do everything for this. In fact, ये दोनों चीजें, 3 P's and this magical line, आपको किसी चार्ट पेपर में लिखकर एक ऐसी जगह टांग देनी चाहिए जहां आपकी नजर इस पर बार बार पड़े और आपका अपना गोल आपको याद रहे. Remember, your goal is your biggest motivator, and if you don't have a goal, nobody can motivate you. भाषा सीखने का मतलब है उस भाषा के ये 4 स्किल्स सीखना: listening, speaking, reading and writing. Yesterday we talked about listening. So when we think of speaking, there is a very important aspect which we call fluency. And normally it's taken as fast speaking. So let us understand कि ये fluent होना आखिर है क्या. Oxford Dictionary के अनुसार being fluent is being able to express easily and articulately, or being smooth, graceful and effortless. So जब आप fluent होते हैं तो आपको शब्द ढूंढने के लिए रुकना या अटकना नहीं पड़ता. And there is a spontaneity in your speech like the free flowing water of a river. When you are fluent, you are lucid and make an impression on the person you are talking to. The first thing from today's lesson is we have to be fluent, not fast, while speaking. अब समझना यह है कि फ्लुएंसी आएगी कैसे. फ्लुएंसी की कुछ जरूरतें हैं: अ साउंड वोकेबुलरी, दूसरा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज पैटर्न्स,
तीसरा a lot of practice, and चौथा a self confidence which comes automatically when you do these three things. So let us understand how to work on these things. Let us quickly read this paragraph on your screen. An old man was going on the road. He saw a car. The car was red in color. The man liked the color of the car. Suddenly, the car stopped near the man. A young man got down from the car. The old man recognized the young man. He had taught him when he was in 10th class. The young man touched his feet. Now, इस पैराग्राफ में जो शब्द आए हैं वो इस तरह से आए हैं जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं. इनको गौर से देखिए. सो अगर हम देखें तो टोटल वर्ड्स इस पैरा में हैं 62. Now, there are 2 points that you have to understand very, very carefully. There are 3 types of words in any piece of information. Some that are used repeatedly. These are called high frequency words. These make almost 50 to 60% of the total spoken or written words. Example, some that are central to the topic being discussed. Example, car, man. These words form 5 to 10%. बाकी के 30 to 40% ऐसे हैं जिनमें से लगभग 40% के शब्दों को हम आप जानते हैं. यानी कि अगर सिंपल कैलकुलेशन देखें तो 100 शब्दों वाले एक पैराग्राफ में तकरीबन 60 से 75 शब्द तक ऐसे होते हैं जो या तो हमें पता होते हैं या फिर सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं. तो अगर सबसे पहले हम इन 75% वर्ड्स पर फोकस करें तो हमको इंग्लिश सीखने में कोई परेशानी नहीं होगी. मगर केवल 25% शब्द ऐसे हैं जिनसे हम इतना डरते हैं कि हम वो 75% भी यूज नहीं करते जो हमारे लिए आसान है. If you look at the successful people, we'll find that most of them have worked harder on their strengths and excelled. Just imagine कि अगर लता मंगेशकर ने अपना ध्यान डांस सीखने में लगाया होता, सचिन ने अपना ध्यान फुटबॉल खेलने में लगाया होता और अमिताभ बच्चन ने अपना ध्यान राइटर बनने में लगाया होता, तो भी क्या ये लोग उस तरह के रिकॉर्ड्स बना पाते जैसे इन्होंने बनाए हैं. So let's shift our focus now on the things we know. और सबसे मजेदार बात यह है कि अगर आप 400-500 शब्द भी जानते हैं तो आप बेसिक इंग्लिश बोल सकते हैं. जी हाँ, ये सच है. कम ऑन, इतने शब्द तो हम में से हर कोई जानता है. मगर समस्या पता है क्या है? एन मौके पर यही शब्द हमारा साथ नहीं देते और बाद में हमें रियलाइज होता है, अरे यार ये शब्द तो ऐसा था, है ना? ऐसा क्यों है? चलिए इसके पीछे के कारण को भी समझते हैं. चलिए अपनी डायरी और अपना पेन खोलिए. मैं आपको एक लेटर दूंगा और जैसे ही मैं गो बोलूंगा आप वीडियो रोककर उस लेटर से शुरू होने वाले जितने भी शब्द आपको आते हैं अपनी डायरी में लिख दीजिए. अभी लिखना मत, बस समझ लो करना कैसे है. मान लो मैं आपको लेटर देता हूं डी और मेरे गो बोलते ही 1 मिनट में लेटर डी से जितने शब्द आपको आते हैं आपने उन्हें अपनी डायरी में लिख देना है. आई होप कि ये क्लियर है. तो आपके लिए लेटर है ए. सो रेडी, स्टडी एंड गो. ऑलराइट, स्टॉप. अब देखिए आप लोगों में से ज्यादातर लोगों का जो पहला वर्ड है वो है एप्पल, है ना? जानते हैं ऐसा क्यों है? इसका कारण है हमारी मेमोरी. जिन चीजों से, लोगों से, शब्दों से हमारा वास्ता रोज पड़ता है वो हमारी एक्टिव मेमोरी में रहते हैं और हमें बहुत जल्दी याद आ जाते हैं. मगर ऐसी चीजें, ऐसे लोग, ऐसे शब्द जिनसे हमारा कांटेक्ट कम होता जाता है, धीरे धीरे हमारी पैसिव मेमोरी में चले जाते हैं और हमें तुरंत याद नहीं आते. सो नाउ इट्स क्लियर कि एप्पल हमारा पहला शब्द क्यों है. यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद दिस वर्ड. A for apple. I think this is the first thing most of us have learned in the name of English.
और तब से लेकर आज तक एप्पल एक वर्ड के रूप में और एक फल के रूप में हमसे जुड़ा हुआ है। मगर ऐसे कई शब्द हैं जो आप जानते होंगे पर आपको अभी याद नहीं आए। आप कुछ देर सोचेंगे ना तो आपको ऐसे बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे। पॉइंट इज इट्स योर कॉन्टैक्ट दैट मेक्स योर कनेक्ट विद दैट वर्ड। वाओ, अनदर गोल्डन लाइन। योर कॉन्टैक्ट मेक्स योर कनेक्ट। A regular contact makes a stronger connect, and these words remain in our active memory. And words that we don't use regularly go into our passive memory, and we cannot recall such words quickly. एक और बात, जिन शब्दों को आप जानते हैं अगर आप उन्हें यूज नहीं करते तो आपको अपनी वोकेबुलरी बढ़ाने में भी दिक्कत होती है। जो भी टीचर्स इसे देख रहे हैं ये पॉइंट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हमारी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है वो हमारी नई नॉलेज के लिए एक संदर्भ या कॉन्टेक्स्ट देती है, जिससे हमें नई चीजें सीखने में बहुत आसानी होती है। In the last video, I asked you to spare 10 minutes for listening. Today, I'm asking you again for another 10 minutes now to read something every day. आपकी लिसनिंग और रीडिंग से आपको कई फायदे होंगे। जैसे पहला, आपके सीखे हुए सारे वर्ड्स आपकी एक्टिव मेमोरी में रहेंगे। दूसरा, रोज कुछ नए नए शब्द आपकी वोकेबुलरी से जुड़ते जाएंगे। और तीसरा, लगातार सुनने और पढ़ने के अभ्यास से कई सारे पैटर्न्स आपकी समझ में आते जाएंगे और आपकी ग्रामर की लर्निंग आसान होती जाएगी। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि पढ़ना क्या चाहिए। आप छोटे बच्चों की किताबें पढ़ सकते हैं, कोई स्टोरी बुक पढ़ सकते हैं, अपनी पसंद की कोई मैगजीन पढ़ सकते हैं या फिर कोई नॉवल पढ़ सकते हैं। मैं आपको 2 चीजें रिकमेंड करना चाहूंगा, बाकी चॉइस आपकी है। पहला, इंग्लिश न्यूज़पेपर। स्टार्ट करने के लिए आप हिंदुस्तान टाइम्स या ट्रिब्यून पढ़ सकते हैं। इनकी भाषा कंपैरेटिवली आसान होती है और आपको समझने में आसान रहेगी। न्यूज़पेपर पढ़ने का एक बड़ा फायदा यह है कि इसके समाचारों के बारे में तो आप पहले से ही जान चुके होते हैं, तो आप इजीली उनसे रिलेट कर पाते हैं और ये हमारी समझने को बड़ा इजी कर देता है। दूसरा, देयर इज अ मंथली मैगजीन कॉल्ड विजडम। ये चेन्नई में छपती है और ये बच्चों की मैगजीन है जिसकी कॉस्ट 15 रुपए के आसपास है। सो इंग्लिश सीखने के साथ साथ इस मैगजीन का एक फायदा ये होगा कि आपके जीके भी बढ़ाएगी। सो इन दोनों में से आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं और अगर दोनों पढ़ लें तो फिर तो बात ही क्या है। तो ये तो बात हुई कि क्या पढ़ना है। अब इसे पढ़ना कैसे है, वोकेबुलरी कैसे बढ़ानी है और हाई फ्रीक्वेंसी के वर्ड्स से कैसे डील करना है, इन सब पर हम अपने अगले एपिसोड में बात करेंगे। तो अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए और आज के वीडियो की जो भी बात आपको सबसे अच्छी लगी हो वो लिखकर मुझे बता दीजिए और दूसरे लोगों तक इस कंटेंट को पहुंचाने में मेरी हेल्प कीजिए और वीडियो को शेयर कर डालिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। For any queries, you can mail me at successcafe007@gmail.com or WhatsApp me at 9910237546 and all your genuine queries will be responded. So, इंग्लिश लर्निंग के इस सेशन को आज दुष्यंत कुमार के हिंदी के शेर के साथ समाप्त करते हैं। कौन कहता है आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। See you in the next episode. Bye bye. Take good care of yourself.